Hello students, in our previous video we have seen what is noun and how to recognize the nouns. Okay, now in this video we will see how to form nouns from verbs, from adjectives and from noun itself. Okay, इसके पहले वाले वीडियो में हमने नाउन क्या है, नाउन को कैसे पहचानना है ये देख लिया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नाउन कैसे बनाना है वर्ब से, एडजेक्टिव से, और एक नाउन से दूसरे नाउन में हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू फॉर्म नाउन्स। फर्स्ट वी विल सी फ्रॉम वर्ब्स। पहले हम देखेंगे नाउन वर्ब से कैसे बनते हैं। ओके, एक्चुअली व्हेन वी हैव टू फॉर्म नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स वी हैव टू ऐड सफिक्स। हमें सफिक्स ऐड करने होते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, जो वर्ब्स होते हैं उनमें सफिक्स लगाकर नाउन फॉर्म करते हैं। सो लेट्स सी the first one by adding ance or ence। ओके, अब हम देखेंगे कि हम ance या ence ये सफिक्सेस ऐड करके नाउन्स कैसे बनाते हैं। एक्चुअली एक रूट वर्ब होता है और उस रूट वर्ब में हम जब ये सफिक्सेस लगाते हैं तो उससे नाउन फॉर्म होते हैं। लेट्स सी विद एग्जांपल्स। द फर्स्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग इज परफॉर्म। ओके, नाउ सी हियर हाउ I am forming the noun. I am adding ance. Perform, performance. Okay, perform is a verb. Perform ये एक verb है, and by adding ance we can make noun from it. Performance. Okay, now let's see another example. Prefer. Okay, it's a verb. Now preference. So this preference is a noun. Prefer, it's a verb, and by adding this ence we can make noun from prefer. Now let's see another example. Appear. Okay, now what will we add here? We will add ance and form the noun appearance. Okay, let's see one more example. Resist. Okay, resist. So by adding ance we can make noun resistance. Okay, let's have one more example. Attained. Now we can add ance and form a noun attendance. Okay, so these all are verbs and by adding ance and ence we can make noun like this. Okay, ये सारे verbs है। perform ये एक action word है। verb means all the action words comes under category verbs। जितने भी action words होते हैं वो verbs होते हैं। so perform it's an action, so it's a verb, and by adding ance we make the noun performance. इसमें ance ऐड करके हमने noun बनाया है। okay, now I'm going to explain you how we will use verb and the same verb as a noun. okay, उस वर्ब को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उस वर्ब से बने वाले नाउन को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। सो लेट्स सी हियर आई हैव रिटन एग्जांपल। ही अपीयर्ड ओनली इन द लास्ट पार्ट ऑफ द प्ले। ओके, हियर आई यूज्ड द वर्ब appeared. Now in the next sentence, see,
His appearance made a long-lasting effect on the audience. Here, I used the noun which is formed by adding ance in the verb. So, this is a noun. His appearance made a long-lasting effect on the audience. Okay. Now, secondly, we will see how to form nouns from verbs by adding meant. ओके, अब हम देखेंगे कि meant सफिक्स ऐड करके वर्ब से नाउन कैसे बनते हैं. ओके, लेट्स सी विद एग्जांपल्स. सो द फर्स्ट वर्ब आई एम गोइंग टू टेक इज रिक्वायर. You know this require is a verb. Now I am adding ment to form noun. Requirement is a noun. Let's see another example. Assign. Now what will be the noun? Assignment. Okay. See another example. Enjoy. What will be the noun? Enjoyment. Now, the another example is replace. The noun will be replacement. Okay. In this way, we can form nouns by adding ment in the verb. Okay. Let's see with एग्जाम्पल. देखिए, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है. ही रिक्वायर्स मेनी थिंग्स टू कंप्लीट हिज टास्क. हियर दिस रिक्वायर वर्ड इज यूज्ड एज अ वर्ब. ही रिक्वायर्स मेनी थिंग्स टू कंप्लीट हिज टास्क. नाउ इन अनदर सेंटेंस, हियर हिज रिक्वायरमेंट्स हैव नो लिमिट्स. ओके, हियर दिस वर्ड रिक्वायरमेंट I used as a noun. Okay, it's a noun and it's a verb. There are lots of words like displace, displacement, fulfill, fulfillment. Okay, so by adding ment in the verb, we can form nouns. Now we will see how we can form nouns by adding er to a verb. हम er ऐड करके verb से noun कैसे बनते हैं ये देखेंगे. Let's see with example. So first word I am going to take is dance. It's a verb. Now dancer is a noun. I am taking another example. Run. It's also a verb. Runner is a noun. By adding er, we can make noun from the verbs like this. Okay. Now I am going to take another example. Sharpen is a sharpener. Okay. Now let's see one more. Open. Opener. Okay, like this we can form noun by adding er in the verb. Let's see in the sentence. Here in these sentences I have used dance and dancer. Okay, मैंने dance और dancer word का यूज़ किया है. अभी देखिए, हेमा dances on the stage. यहाँ ये जो dance है ये action word है. हेमा की action इसमें हमें बताई है, इसलिए ये verb है. और यहाँ देखिए, हेमा is a stage dancer. ओके, हेमा एक स्टेज डांसर है. यहाँ पर हेमा की क्वालिटी बताई है. सो इट्स अ नाउन. नाउ वी विल सी हाउ कैन वी फॉर्म नाउन बाय एडिंग tion और sion. ओके, अब हम देखेंगे कि हम tion और sion वर्ब में ऐड करके नाउन कैसे बनाते हैं. लेट्स सी विद एग्जांपल्स.
See here, I have written some verbs here, okay, like inform, decide, locate, describe, admit, etc. Now we can add tion or sion in these words, in these verbs, and we can form noun. Let's see how. The first verb is inform, so I am going to make the noun information. I have added here tion to form noun. मैंने यहाँ tion ऐड करके इन्फॉर्म से इंफॉर्मेशन बनाया. वैसे ही हम डिसाइड से क्या बनाएंगे? डिसीजन. आई एम एडिंग हियर sion. देन लोकेट विल बी लोकेशन. डिस्क्राइब विल बी डिस्क्रिप्शन. ओके. एडमिट विल बी मिशन. Okay, in this way we can form nouns by adding tion or sion. Now let's see in the sentence. Okay, see here, मैंने यहाँ example लिख के रखे हैं. मैंने inform verb लिया है. He informed me about the theft. Okay, here this action is going on which informed. Okay, और यहाँ देखिए हिज इन्फॉर्मेशन नेवर प्रूव्स रॉन्ग. ओके, उसने मुझे इन्फॉर्म किया थेफ्ट के बारे में और उसकी इन्फॉर्मेशन कभी भी गलत नहीं होती. सो यहाँ इन्फॉर्मेशन ये कोई एक्शन वर्ड नहीं है, इट्स अ noun. Okay, here inform verb is used as a verb, and here in this sentence information is used as a noun. Okay, now we will see how can we form nouns by using the ing form of the verbs. Okay, by using the ing form of a verb. ओके, हम किसी वर्ब का ing फॉर्म यूज़ करके उसमें उसे नाउन में कैसे बदल सकते हैं ये हम देखेंगे. सो एग्जाम्पल तो वेरी सिंपल है कि हम कोई भी वर्ब ले लेंगे, जैसे वॉक. ओके, वॉकिंग. Then practice will be practicing. Like exercise, exercising, etc. We will see a sentence so that you can easily got my point. Okay, see here, I used verb walk and walking as a noun. Okay, he walks 2 kilometers a day. Okay, here this action is taking place, so it's a verb. He walks 2 kilometers a day. Now here walking makes him fit. अब walking यहाँ एज अ वर्ब यूज नहीं हुआ है. ओके, ये ing फॉर्म है इसी वर्ब का, लेकिन ये एज अ नाउन यूज हुआ है. वॉकिंग मैक्स हिम फिट. ओके, और एक नोट डाउन कर लीजिए कि जब हम ing फॉर्म यूज़ करके एज अ नाउन उस वर्ब को यूज़ करते हैं तो वो जो ing फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करके हमने नाउन बनाया है, इट वर्क्स एज अ सब्जेक्ट. जब हम ing फॉर्म लगाकर किसी वर्ब को एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो वो सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, और इसे ही हम जेरेंड फॉर्म भी कहते हैं. जेरेंड फॉर्म आपको कई बार एग्जाम में आता है कि जेरेंड फॉर्म यूज़ करिए, मीन्स ही आपको किसी वर्ब को ing ऐड करके उसी का नाउन फॉर्म यूज़ करना होता है. ओके, सो ये याद रखिए कि कभी भी अगर आपको जेरेंड फॉर्म यूज़ करने के लिए कहा है तो आपको ing फॉर्म ऑफ नाउन यूज़ करके उसे एज अ नाउन यूज़ करना है. ओके, वन मोर थिंग कि हम वर्ब को ही, सेम वर्ब को सिर्फ डिटर्मिनर्स, बाय यूजिंग डिटर्मिनर्स बिफोर दी वर्ब्स, हम वर्ब्स के पहले डिटर्मिनर का यूज़ करके उस वर्ब को एज अ नाउन यूज़ कर सकते हैं. डिटर्मिनर्स लाइक ए, एन और द, इनका यूज़ करके हम उसी वर्ब को सेम फॉर्म में यूज़ करके उसे एज अ नाउन यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखिए कैसे. सी हियर, मैंने एग्जाम्पल लिखा है, दिस रिजल्टेड इनटू अ ग्रैंड सक्सेस.
ओके, हियर रिजल्ट वर्ब इज यूज्ड, ओके। और यहाँ पर देखिए मैंने उसी वर्ब को यूज़ किया है, बस उसके पहले मैंने द डिटर्मिनर का यूज़ किया है। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स, हियर दिस डिटर्मिनर एंड दिस वर्ब is used, okay, the same form is used, but here this verb is acting as a noun। यहाँ पर ये as a noun यूज़ हुआ है क्योंकि हमने इसके पहले the यूज़ कर लिया, इसीलिए ये as a noun यहाँ वर्क कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार किसी भी noun के पहले हम a, an और the इन डिटर्मिनर्स का यूज़ करके उसे as a noun यूज़ कर सकते हैं, ओके। मुझे लगता है अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि nouns कैसे बनते हैं और उनका यूज़ कैसे होता है। अब ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, इसलिए एडजेक्टिव से और नाउन से ही नाउन कैसे बनते हैं ये हम हमारे अनदर वीडियो में देखेंगे। अंटिल देन गुड बाय, सी यू, ओके।